Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Direct and Indirect Series 1, Day 26. Students, as you know, we can report the words of a speaker in two ways: direct speech and indirect speech. Direct speech is the form of speech in which the actual words of a speaker are reported. As far as indirect speech is concerned, indirect speech is the form of speech in which what one speaker says is reported by another with almost accuracy, but without using his or her actual words. So, students, we were discussing exclamatory sentences. But before starting my lecture, I will explain you what is direct speech basically. Direct speech is dialogue और quotation. Direct speech या तो dialogue होता है या quotation होती है, ठीक है, किसी भी राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट अल्फाज, एक्चुअल अल्फाज, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, रद्द बदल नहीं कर सकते. डायरेक्ट स्पीच या तो डायलॉग होता है या फिर कोटेशन होती है, ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन नहीं कहते. डायरेक्ट स्पीच इज नॉट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच इज नोन एज नरेशन, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Exclamatory sentences क्या होते हैं? This is today's part 2. Okay, so exclamatory sentences expresses strong emotions or feelings. और exclamatory sentences में sign of exclamation भी होता है, as you can see it over here. For example, hooray, alas, wow, etc. ठीक है, bravo. exclamatory words क्या है और उसको हम किस तरह से change करते हैं? wow, hurrah, aha. So these words will be explained. Exclaimed with joy, इसको हम कैसे करेंगे explain के exclaimed with joy, ठीक है. what अगर आए तो exclaimed with surprise, bravo exclaimed with joy. what को हम करेंगे exclaimed with surprise, bravo को exclaimed with joy, oh exclaimed with sorrow, alas को exclaimed with grief and sorry को exclaimed with regret, ठीक है. So students, as I told you, today is part 2 of exclamatory sentences. Exclamatory sentences में, as I have told you yesterday in my yesterday's lecture, कि ये strong feelings और emotions को express करते हैं, ठीक है. अब इसको हम कैसे करेंगे? She said to her mother, how lucky you are to win this prize. She said to her mother. What is this? This is reporting speech. Okay, this is reporting speech and reporting speech is in past tense, ठीक है. कैसे पता चला? what is reporting verb? said is the reporting verb, ठीक है. so this is reporting speech and reporting speech होती है कॉमों से बाहर वाली. how lucky you are to win this prize, ये क्या है? this is reported speech because reported speech is inside the commas. all right, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर reporting speech हमारे पास past tense में है और reported speech जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो वो उसी के ही पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा वाइल कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट. ओके, अब देखिए आप, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब इसको हम कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट. शी एक्सक्लेम्ड विद एस्टोनिशमेंट दैट शी वॉज वेरी लकी टू विन दैट प्राइज. दिस प्राइज को चेंज कर दिया दैट प्राइज में, ठीक है. हमने दैट का यूज़ किया, प्रोनाउन चेंजेस की और टेंस की तब्दीली भी की. प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज कर दिया, ठीक है. वाई? बिकॉज रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस. ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमेन इज. वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमेन इज. अब आप देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, बिकॉज दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट? वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट वुमेन. एक तो है दैट जो हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए यूज़ करते हैं, एक तो वो दैट है, ठीक है, और दूसरा दैट है दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया, ठीक है. वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट वुमेन वॉज वेरी ओल्ड. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन. I said, this is reporting speech and reporting speech is in past tense. Okay, how foolish I have been. This is reported speech and reported speech is in
प्रेजेंट टेंस, तो अगर ये प्रेजेंट में है तो हम उसी के ही पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इसमें, सेड, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पैसिव, इनटू इनडायरेक्ट। आई एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट आई हैड बीन वेरी फुलिश, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, exclaimed in wonder, ये हमने किया बिकॉज दीज आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, यूज ऑफ दैट एंड टेंस को चेंज किया, प्रोनाउन चेंजेस होती हैं, टेंस चेंज होता है, और कॉमास रिमूव करके हमने दैट लगा दिया, ठीक है। आई एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट आई हैड बीन वेरी फुलिश, इधर हैव बीन था, हैव बीन इज द हेल्पिंग वर्ब फॉर प्रेजेंट, सो व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, हैड बीन इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट को हमने उसी के पास्ट में चेंज कर दिया, okay। So students, what we have learned in today's video, that in exclamatory sentences में हम strong emotions और feelings को discuss करते हैं, और sign of exclamation तो आता ही है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम जब कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम उसी के पास्ट में चेंज कर देते हैं। बट कीप इन माइंड, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज, जो कॉमों से बाहर होती है, इफ इट इज इन पास्ट टेंस, देन वी विल change that, okay। So I hope you will like this video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe and share.